ভারত এটা শুধু দিক নয়, ক্ষমতারও প্রতীক। উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারতের অষ্টলক্ষ্মী। উত্তর পূর্ব ভারত নিয়ে বড় বার্তা মোদির। উত্তর পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ৭৫,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিলেন মুকেশ আম্বানি। অবকাঠামো ও কর্মসংস্থানের উন্নয়নে অতিরিক্ত ৫০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের ঘোষণা গৌতম আদানির। বৈচিত্র্যে ভরা উত্তর পূর্ব। আজ শুক্রবার নয়াদিল্লিতে আয়োজিত রাইজিং নর্থ ইস্ট ইনভেস্টর সামিটে দাঁড়িয়ে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২৫ সালের রাইজিং নর্থ ইস্ট ইনভেস্টর সামিটে শুক্রবার দিল্লিতে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ভারতের অষ্টলক্ষ্মী হিসাবে উল্লেখ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অঞ্চলটির আত্মবিশ্বাস, সংযোগ এবং বাণিজ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন প্রধানমন্ত্রী। এই সামিটে মুকেশ আম্বানি অর্থাৎ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি উত্তর পূর্বাঞ্চলে ৭৫,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন, যা অঞ্চলটির অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি অতিরিক্ত ৫০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন, যা উত্তর পূর্ব ভারতের অবকাঠামো এবং কর্মসংস্থানের উন্নয়নে সহায়ক হবে। এই সামিটে প্রধানমন্ত্রী মোদী বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, ভারতকে বিশ্বের সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়, আর এই বৈচিত্র্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি হলো আমাদের উত্তর পূর্ব। বাণিজ্য থেকে সংস্কৃতি, বস্ত্র থেকে পর্যটন, এই বৈচিত্র্যের উত্তর পূর্বের সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি আরো বলেন, বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে ভারতের পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কাছে উত্তর পূর্ব শুধু একটি দিক নয়, এটি এম্পাওয়ার অর্থাৎ ক্ষমতায়ন, অ্যাক্ট পদক্ষেপ এবং স্ট্রেংথ অর্থাৎ শক্তিশালীকরণ এবং ট্রান্সফর্ম অর্থাৎ রূপান্তর, এই চারটি নীতির প্রতীক বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পূর্ব ভারতের জন্য এটাই আমাদের সরকারের নীতি, মন্তব্য মোদী। প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বকে ভারতের অষ্টলক্ষ্মী বলে উল্লেখ করেন এবং জানান, একসময় সীমান্ত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত এই এলাকা এখন দেশের উন্নয়নে প্রথম সারির এক অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এই সম্ভাবনাময় অঞ্চলে বিনিয়োগকারীদের আরো বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নত পরিকাঠামো যেমন পর্যটনকে আকর্ষণীয় করে তোলে, তেমনি বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে তোলে। আগামী দশকে উত্তর পূর্ব ভারতের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে, তাই প্রথম চালকের ভূমিকা পাওয়ার এটাই সেরা সময় বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। আজকের এই সমাবেশে থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের কাছে উত্তর পূর্ব শুধুমাত্র কোনো একটি দিক নয়, এটা ক্ষমতা, শক্তিরও প্রতীক। বাণিজ্য থেকে ঐতিহ্য, বস্ত্র থেকে পর্যটন, উত্তর পূর্বের বৈচিত্র্যই তার শক্তির উৎস। মোদী বলেন, উত্তর পূর্ব মানে বায়ো ইকোনমি, চা শিল্প, পেট্রোলিয়াম, খেলাধুলো এবং পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দু। আজকের এই সামিটে উপস্থিত ছিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। এছাড়াও দেশে উত্তর পূর্ব বিনিয়োগ টানার জন্য এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন দেশের অন্যতম ধনকুবের, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীরা। উপস্থিত ছিলেন মুকেশ আম্বানি, গৌতম আদানিরা। कुछ ही महीने पहले यहां भारत मंडपम मैम ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया था। आज हम यहां नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट का उत्सव मना रहे हैं। यहां इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स आए हैं। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह है, उमंग है और नए नए सपने हैं। मैं सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों की सरकारों को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके प्रयासों से वहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार माहौल बना है। नॉर्थ ईस्ट राइजिंग समिट, इसकी सफलता के लिए मेरी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है।
और हमारा नॉर्थ ईस्ट इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर स्टेज पर लेकर आई है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आया है वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है, इस जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं ना, सुनकर के हंसते रहोगा। 700 टाइम, 700 से ज्यादा बार हमारे केंद्र सरकार के मंत्री नॉर्थ ईस्ट गए हैं और मेरा नियम जाकर के आने वाला नहीं था, नाइट स्टे करना कंपलसरी था। उन्होंने उस मिट्टी को महसूस किया, लोगों की आंखों में उम्मीद देखी और उस भरोसे को विकास की नीति में बदला। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है। हम लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था, आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहां इन्वेस्टर्स को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बेहतर रोड्स, अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क
किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है। ट्रेड भी वहीं ग्रो करता है जहां सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट की पहली शर्त है, उसका फाउंडेशन है। इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट दिखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट दिखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और बराग नदियों पर वाटरवेज बन रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड भी बनाया गया है। ये इंडस्ट्री को जरूरी गैस सप्लाई का भरोसा देता है। यानी हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज, हाईवेज, हर प्रकार से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी सशक्त हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में जमीन तैयार हो चुकी है। हमारी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़कर इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज से चूकना नहीं है। साथियों, आने वाले दशक में नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड पोटेंशियल कई गुना बढ़ने वाला है। आज भारत और आसियान के बीच का ट्रेड वॉल्यूम लगभग $125 बिलियन है। आने वाले वर्षों में ये $200 बिलियन को पार कर जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इस ट्रेड का एक मजबूत ब्रिज बनेगा। आसियान के लिए ट्रेड का गेटवे बनेगा। और इसके लिए भी हम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहे हैं। भारत, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे से म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक सीधा संपर्क होगा। इससे भारत की कनेक्टिविटी थाईलैंड, वियतनाम, लाओस जैसे देशों से और आसान हो जाएगी। সংবাদ এই পর্যন্তই। ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।